Mohammad Nabi sir, and welcome to Fajandar Junior College, Department of Sociology. We are already started a chapter, Introduction to Indian Society. In that we are started the post-independence period. In that we are seeing the characteristics of post-independence India. We are seeing the fourth characteristic that is given in our textbook, that is a economy. That is the third. Economy. India have the economy plan of 5 years. How many years? 5 years plan. And up to 2017, India completed the 12 5 years plans. Up to the 2017, India has completed 12 5 years plan. So many of the plans are taken by the Indian government, and that is started by the Indian government. In that we have seen that the 1991 policy, that is a LPG policy. It is a new policy is taken by the government of India, that is a LPG policy. L means liberalization, privatization and governmentization. That is taken in the 1991 by the Dr. Manmohan Singh. That time they are the finance minister. Now after that they are become the prime minister, but that time in 1991 the Dr. Manmohan Singh is a finance minister, and they are drawn the new policy, that is the LPG policy in 1991. After that we have seen that after the 2014 many of the changes seen in the Indian economy after the 2014, like demonetization, single taxation system, that is under GST, goods and service tax, that is the single taxation policy. And after that we are seeing the Swachh Bharat drives is one of the economic policy. So that we are seeing that the economy is changes after the 5 years, and we are said that the India have the 12 5 years plan. After that in 1991 that is a many of the famous policy, that is a LPG policy in 1991 by the Dr. Manmohan Singh. That time they are finance minister. Now after that 2014 we are seeing the many of the changes. In that we are seeing the demonetization and single taxation system, that is a GST. Okay. After that we have to see the next point, that is the fourth point, education. After the independence, education is totally different in the Indian society. We are seeing that many of the Anganwadis, schools, universities, deemed universities and many of the educational institutes are open in the Indian society after the independence. So some of the names, that is the IIT, IIM and NIT are open in our education system. What is the IIT? Indian Institute of Technology. IIM, Indian Institute of Management. And NIS, on NIT, Indian Institute of Technology, National Institute of Technology.
नेशनल इंस्टीट्यूट So many of the education system are changed in the Indian society after the post-independence India. In that we have seen the many of the big and huge educational institutes are open. For example, IIT, IIM and NIT. After that, the many of these sources of education also started in the Indian society. We are see that the many of the deemed universities, open universities, distance education, online education are started in the Indian society and after the independence period. So education is totally changed after the post independence India. Now last is given, that is a polity. Politics are totally changed in Indian society. Before that, the Nawab, Prince, Raja and Rani are the kings of that place. But after the independence, the totally change in the polity. There is a federal system of government are started by the Indian politics. In that we are seeing that the above 18 years people give the vote to the government. Above 18 years people, that are the men or women and anyone, and they are the citizen of India, they are able to give the vote to the Indian government. And after that, India is started the multi-party system. Means India have the multi-party system. Many of the regional parties, many of the national parties and many of the local parties are made by the other peoples, and that is India have the multi-party systems. India also have the federal system. In the federal system, we are seeing that the central government is different and state governments are different and the union territories governments are different. Central, state and UT means union territory. So there are the polity is totally changed in the Indian society. The before that is a Nawab, Prince and Raja and Rani served to the people, but after that there is a totally change in the politics and the India adopted the federal system, the voting system. The all above 18 peoples are give the vote to the government, that is the men or women, they have the only citizen of India. After that, India adopted the multi-party system. The many of the parties are made by the other peoples, that is a multi-party system. And federal system means central government is different, state government is different and union territory government is different. Now for Urdu, हिंदुस्तानी समाज का तारुफ, ये सबक की शुरुआत हम कर चुके थे. इसमें आज हम देखने जा रहे हैं आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान. जिसमें हम दो नुकात पहले ही देख चुके थे. आज तीसरा नुक्ता जो देखने जा रहे हैं वो है मईशत. हमारे हिंदुस्तान की मईशत जो है 5 साल वक्फे के एतबार से बनाई जाती है. माशी पॉलिसी जो बनाई जाती है 5 साल वक्फों के एतबार से बनाई जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2017 तक हिंदुस्तान 5 साल मंसूबा बना चुका था. कितने? 5 साल मंसूबा 2017 तक
बना चुका था। 2017 तक 12 5 साला मंसूबे बना चुका था, जिसमें हम कई अच्छी पॉलिसीज भी देख सकते हैं, जैसे एलपीजी पॉलिसी जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए लाई गई थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका फर्क मार्केट पर पड़ा और बहुत ज़्यादा तौर पर मईशत में सुधार हुआ। जो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो उस वक्त के वजीर खारजा थे और उस वक्त वो वजीर आजम नहीं थे, उस वक्त वो जो थे वजीर खारजा थे, तब उन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी लाई थी। 2014 के बाद से भी हमें मईशत में कई तब्दीलियां देखने मिली हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि नोटबंदी हो या एक ही टैक्स हो जिसे हम जीएसटी कहते हैं, या स्वच्छ भारत का जो काम किया जा रहा है मईशत पर, वो भी इसमें देखा जा सकता है। तो इस तरह से मईशत जो है हमारी तब्दील होते रहती है, जिसमें हमने देखे कि हमारी जो मईशत है 5 साला मंसूबे पर चलती है, जिसमें 2017 तक 12 5 साला मंसूबे बनाए जा चुके थे। उसके बाद एलपीजी पॉलिसी 1991 में लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए, जो उस वक्त के वजीर खारजा थे। उसके बाद 2014 में नोटबंदी और एक ही टैक्स जीएसटी के तौर पर लाया गया। इसके बाद जो हमें देखना है वो है तालीम। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी तालीम में बहुत सारा सुधार हुए और उस सुधार के ज़रिए बहुत बड़ी तालीमी गाहें जो हैं वो तैयार की गई, जैसे आंगनवाड़ी, स्कूलें, यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। इसके साथ साथ बड़ी तालीमी गाहें या तालीमी मरकज़ भी बनाए गए, जैसे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ तालीम में भी वक्फे से तब्दीलियाँ की जाती है और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि फासलाती तालीम या फिर ऑनलाइन तालीम, ये भी हमारी तालीम के हिस्से बन चुके हैं। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, उसके साथ साथ हमारी तालीम में भी बहुत ज़्यादा सुधार आए। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है सियासत। आज़ादी के बाद हमारी सियासत में भी तब्दीली आई। सियासत में इस तरह से तब्दीली आई कि जो राजा, महाराजा और राजकुमारों के ज़रिए सियासत को और नवाबों के ज़रिए जो सियासत को चलाया जाता था वो बंद कर दिया गया और हिंदुस्तान ने वफाकी निज़ाम को अपनाया। हर इंसान, हर फर्द जो हिंदुस्तान का शहरी हो, वो 18 साल की उम्र को अगर पार कर गया हो तो उसे वोट डालने का हक हासिल होता है। इस तरह से हर इंसान को, जो हिंदुस्तान का शहरी हो, मर्द हो या औरत हो, जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, वो वोट डाल सकता है। इस तरह की वोटिंग हमारे यहाँ पर शुरू की गई सियासत में। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कसीर पार्टी सिस्टम, कसीर पार्टी निज़ाम, हिंदुस्तान में कसीर पार्टी निज़ाम को राइज किया गया। कसीर पार्टी निज़ाम में इस तरह से है कि लोग अपनी अपनी तरह की कई पार्टियां बना सकते हैं, जैसे मरकज़ी, सूबाई और रियासती पार्टियां हम हमारे हिंदुस्तान में देख सकते हैं। तो इस तरह की कई पार्टियां हिंदुस्तान में बनाई जाती हैं, जिसे हम कसीर पार्टी निज़ाम से जानते हैं और हमारे हिंदुस्तान में कसीर पार्टी निज़ाम राइज है। इसके बाद वफाकी निज़ाम, हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम राइज है, जिसके ज़रिए मरकज़ी हुकूमत अलग होती है और रियासती हुकूमत अलग होती है और यूनियन टेरिटरी की हुकूमत भी अलग होती है। इस तरह से हमारी सियासत चलती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वफाकी निज़ाम में मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों भी मुख्तलिफ होती हैं और इसके ज़रिए हमारी सियासत को चलाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारे ये 3 नुकात मुकम्मल होते हैं। नाउ फॉर मराठी। आधी आपण नवीन घटकाची सुरुवात केली होती, भारतीय समाजाचा परिचय। त्याच्यामध्ये
आपल्याला बघायचं आहे स्वातंत्र्योत्तर कालखंड व स्वातंत्र्योत्तर भारत. त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे ते आहे अर्थव्यवस्था. भारतामध्ये 5 वर्षाची अर्थव्यवस्था आपल्याकडे चालण्याचं ते आहे आपल्याकडे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की आपल्याकडे जे बंधन असतात 5 वर्षाचं असतात. 2017 साली आपल्याकडे 12 इतके 5 वर्षीय संघटनेचे जे प्लॅन होते ते चालण्यात आले. त्याच्यामध्ये आपली अर्थव्यवस्था जे आहे ते 5 वर्षाची असते आणि 2017 साली ते 5 वर्षाचे आपल्याकडे 12 असे अर्थव्यवस्थाचे जे प्लॅन होते ते चालण्यात आले. त्याच्यामध्ये आपल्याला दुसरा बघायचा आहे ते आहे LPG पॉलिसी. LPG पॉलिसी जी होती ते 1991 सालीमध्ये डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी आणली होती. जेव्हा ते अर्थमंत्री होते आपल्या भारताचे, त्यांनी एक नवीन पॉलिसी आणली होती. त्याच्या परिणामस्वरूप लोकांचा खूप उद्धार झाला. तर त्या आपण म्हणू शकता की LPG पॉलिसी जी होती ते खूप आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक जीवनगुट्टीचा त्यांनी परिणाम केला. त्याच्यानंतर 2014 नंतर आपण बघू शकता की 2014 नंतर पण आपल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये काही बदल झाले. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता नोटबंदी याचा पण परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्याच्यानंतर एकच टॅक्स सिस्टम आपल्याकडे भारतात आला, त्याला आपण म्हणू शकता GST. तर असे काही बदल आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये केले गेले. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे ते आहे शिक्षण पद्धती. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या भारतामध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये खूप सुधार झाले. त्याच्यानंतर अंगणवाडी शाळा व युनिव्हर्सिटी व डीम युनिव्हर्सिटी असे कितीही आपल्या भारतामध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये सुधार झाले. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता IIT, IIM आणि NIT सारखे खूप मोठे संस्था पण आपल्या भारतामध्ये उभारण्यात आले. IIT जी होती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, IIM जी होती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट और NIT नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी असे मोठे संविधान आपले शिक्षणाचे केंद्र आपल्या भारतामध्ये उभारण्यात आले. तर आपण म्हणू शकता की शिक्षण पद्धतीमध्ये स्वातंत्र्यानंतर आपल्या भारतामध्ये खूप सुधार झाले. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे राजकारण. राजकारणामध्ये पण खूप सुधार झाले. राजकारणामध्ये जेव्हा राजा राणी नवाब यांच्याकडे आपली जे राजकारणी पद्धती होती ते राजकारणी पद्धती सोडून लोक दुसऱ्या संघीय ढाचेमध्ये आले आणि 18 वर्षाचे जास्त वय असलेल्या लोकांना वोट टाकायची परवानगी होती. तर ज्यांच्या वय 18 वर्ष झालेलं असेल त्यांना वोट टाकायची परवानगी भारतीय संविधानाने दिली. त्याच्यानंतर आपण बघू शकता की आपल्या भारतामध्ये बहुपक्षीय प्रणाली आपल्या भारतामध्ये बहुपक्षीय प्रणाली हे याचं चालन आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की
कितीही पार्टी ते आपल्या भारतामध्ये कितीही पार्टी बनवू शकता आणि ते त्यांचं काम करतात, राजकारण करतात. त्याच्यानंतर आपल्या भारतामध्ये संघीय प्रणाली पण आहे. संघीय प्रणाली आहे म्हणजे आपल्या भारतामध्ये जे केंद्राची सरकार जे असते ते वेगळी असते आणि राज्याची सरकार जे असते ते वेगळी असते. केंद्र व राज्य असे दोन सरकार आपल्या भारतामध्ये चालविले जातात. तर आपण बोलू शकता की आपलं राजकारण जे आहे ते पण खूप मोठं आहे. तर इथेच आपला व्हिडिओ संपत आहे. धन्यवाद.